Hello and welcome. So, in the last class, we did about the Vijayanagar kingdom, and today we are going to start with the last chapter of J.L. Mehta Advanced History Volume 1, that is, Administration of the Sultanate. The first topic being Islamic Theory of State. The Turkish sultans of Delhi brought with them the Islamic theory of state. It was based on a threefold ideal of one scripture, one sovereign, and one nation. Scripture was the Holy Quran, sovereign was the Imam, also called Khalifa or the Caliph, and the nation was the Millat, the Muslim Brotherhood. The basic feature of the state, according to Islamic theory, was the indivisibility in all the three aspects. It contemplated the establishment of a theocratic state based on the Islamic law and recommended only one sovereign, the Caliph, the rule over the Muslim world. The Caliph was styled as Amir ul Mu'minin, the leader of the faithful. His office was thus a political institution based on Islamic injunction. The sovereignty resided in the Millat, who elected their Imam or the Caliph, and the latter was under religious obligation to implement the Islamic law on and for the benefit of his Muslim subject. The Islamic government was therefore one which was composed of the Muslims, by the Muslims, and existed for the happiness and welfare of Muslims alone. This theory had gradually developed and undergone radical changes long before the establishment of Sultanate of Delhi. The monarchical form of government, the basic feature of the Sultanate, was itself an extra-Quranic growth which had evolved and entered the fold of Islam on the Persian soil. जो टर्किश सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली के, उन्होंने जो है वो अपने साथ साथ इस्लामिक थ्योरी ऑफ स्टेट लेकर आए थे. इस्लामिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो प्रमोट करता था तीन आइडियल को: वन स्क्रिप्चर, वन सोवरेन, वन नेशन. एक ही स्क्रिप्चर. एक स्क्रिप्चर क्या था? होली कुरान. एक सोवरेन मतलब एक ही रूलर, एक ही लीडर. कौन थे? इमाम या फिर खलीफा. एक नेशन क्या था? मिल्लत यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड. दुनिया भर के मुस्लिम का एक ही नेशन है. बेसिक फीचर स्टेट का क्या था? इस्लामिक थ्योरी पर बेस्ड था, और इस्लामिक थ्योरी जो है वो इंडिविजिबिलिटी को प्रमोट करती थी. एक मुस्लिम जो है वो आपस में ही अपना एक खलीफा चुनते थे, जिनको अमीर उल मोमिनीन कहा जाता था, मतलब द लीडर ऑफ द फेथफुल. फेथफुल कौन है? मुसलमान फेथफुल है, क्योंकि वो जो है वो कुरान को मान रहे हैं, वो कुरान के बिलीवर हैं. और जो खलीफा होता था वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो कि इस्लामिक रूल्स को, इस्लामिक थियोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते थे. सोवरेनिटी जो है, जो खलीफा होते थे वो कहाँ रहते थे? वो मिल्लत में रहते थे, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब वो एरिया जहाँ पर जो मुस्लिम्स ने कैप्चर किया है. और उसी मिल्लत में से, उसी मुस्लिम ब्रदरहुड में से एक खलीफा चुना जाता था, जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन के अंदर था कि उसको इस्लामिक लॉ को अपनी मुस्लिम प्रजा पर उनके बेनिफिट के लिए इम्प्लीमेंट करवाना है. तो इस तरह से इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम के लिए और मुस्लिम से बना हुआ था. थ्योरी जो स्टेट की थी वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेंजेस आए दिल्ली सल्तनत बनने से बहुत पहले ही. मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, कि अब सपोज दिल्ली सल्तनत में भी एक सुल्तान हो गया, ये खुद ही एक वायलेशन था इस्लामिक लॉ का, क्योंकि इस्लामिक लॉ तो बस एक ही खलीफा प्रमोट करती थी. तो ये खुद ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा कुरानिक ग्रोथ था. ये कुरान के बाहर था, क्योंकि कुरान तो एक खलीफा, एक कुरान, एक खलीफा और एक जो है मिल्लत को प्रमोट करती थी. अब हम लोग करते हैं नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द सल्तनत. द सल्तनत ऑफ द दिल्ली वॉज एन इस्लामिक स्टेट हुज मोनार्क्स, द डोमिनेंट नोबिलिटी एंड हायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बिलोंग टू द मोहम्मदन फेथ.
Theoretically, the Sultan were expected to enforce Islamic law in the land and administer their dominance in a way as to transform the Dar-ul Harb into Dar-ul Islam. They professed nominal allegiance to the Caliph and felt pride in obtaining investiture from him. With the exception of Alauddin Khalji and Mubarak Shah Khilji, all other sultans styled themselves as deputies of Caliph, with the titles as Nasir al-Amir ul-Momnin, assistant of the leader of the faithful, or Yamin ul-Khalifa, the right hand man of Caliph. In actual practice, however, the Sultan and sovereign ruler who did not derive their power from power nor depended on any external force, not even the caliphs, being foreign adventurers who were called upon to rule over vast territories of India, thought it politically expedient to maintain formal contact with the Islamic world beyond the Khyber so as to produce a psychic fear among the Hindus by alluding to the potential source of their strength. Similarly, they usually professed to administer the Islamic law, though the political institutions set up by them did not always conform to the Islamic principle. They were deeply influenced by the Indian traditions and customs and incorporated many elements of ancient Rajput polity with or without modification. Some of the practices and policies of the Sultanate were actually opposed to the spirit of Islamic law. तो क्या कहा जा रहा है कि नेचर और कैरेक्टर क्या था सल्तनत का? तो दिल्ली की सल्तनत को वहाँ के रूलर जो भी रूल करते थे वो कहते थे कि इस्लामिक स्टेट है, और मोनार्क्स जो है वो कहते थे हम तो मोहम्मदन फेथ पर बिलीव करते हैं, हम शरीयत पर बिलीव करते हैं. थ्योरेटिकली ये था भी. तो शरीयत के हिसाब से उनको क्या करना था, उनको खलीफा को असिस्ट करना था एक दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करने में. मतलब एक ऐसा लैंड जो लैंड ऑफ इनफिडल्स था, नॉन बिलीवर्स था, उसको एक लैंड ऑफ बिलीवर्स में कन्वर्ट करने में. कह सकते हैं कि काफिरों के देश को मुसलमानों का देश बनाने में. और ऐसा करने में वो खलीफा से जो है वो टाइटल्स भी लिया करते थे. अलाउद्दीन खलजी और उनके बेटे मुबारक शाह खलजी को छोड़ करके उनके सक्सेसर मुबारक शाह खलजी को छोड़ करके सारे के सारे दिल्ली के सुल्तान ने जो है खलीफा से टाइटल लिया हुआ था. और वो कैसे टाइटल लिया करते थे? नसीर ए अमीर उल मोमिनीन या फिर यामिन उल खलीफा. इसका मतलब है कि कैलिफ का असिस्टेंट. तो वो खुद को खलीफा का असिस्टेंट मानते थे कि वो खलीफा के काम में साथ दे रहे हैं. पर एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो ऐसा कुछ था नहीं. वो सोवरेन रूलर हुआ करते थे, खलीफा के राइट हैंड नहीं थे. फिर ऐसा क्यों था कि वो खलीफा का नाम या टाइटल लेना ज़रूरी समझते थे? इसका कारण बस यही था क्योंकि वो फॉरेन एडवेंचरर्स थे, वो इंडियन नहीं थे. और जहाँ भी वो गए दुनिया में वहाँ वो फॉरेन एडवेंचरर्स थे. तो वो इंडिया में, अगर इंडिया का सिनेरियो लें तो इंडिया में क्या था, वो फॉरेन एडवेंचरर्स हैं. तो वो क्या करना चाहते थे, वो इंडियन हिंदूज के मन में एक फियर जनरेट करना चाहते थे, साइकिक फियर, कि वो अकेले नहीं है. तो रिवोल्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि खैबर पास की दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है जो इस सुल्तान को साथ देगा, है ना, क्योंकि वो खलीफा के सक्सेसर है. और इस वजह से क्या होता था, और इसी तरीके से इस्लामिक लॉ भी वो फॉलो नहीं किया करते थे. वो बताते थे कि हमारा स्टेट एक इस्लामिक स्टेट है और सारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हम कंफर्म करते हैं, बट इसको कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया, है ना. वो बहुत सारे पॉलिसीज़ में जो है वो मॉडिफिकेशंस कर देते थे. और फिर कई बार तो जैसे अलाउद्दीन खलजी और बाकी के केस में हमने देखा कि उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मुझे पता नहीं कि इस्लाम के हिसाब से ये लॉफुल है या नहीं, पर मुझे ये सही लगता है. तो ये बस नाम की बातें थी, नॉमिनल बातें थी, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं थी. ये कहने को एक मुस्लिम स्टेट थे, कहने को एक खलीफा के राइट हैंड थे, बट खुद में ये सोवरेन थे और खुद में इस्लामिक लॉ को वहीं तक फॉलो करवाते थे जहाँ तक इनको अपना फ़ायदा होता था. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, द सुल्तान. मुस्लिम रूलर्स ऑफ दिल्ली assumed the title of Sultan.
It remained in vogue throughout the early medieval period and was popular even among the provincial and regional Muslim dynasties which sprang upon the ruins of the Sultanate. Babur was the first Muslim monarch of India who replaced this title with that of the Padshah in 1526. The term Sultan connoted power or authority and sometimes applied to provincial governors of caliph who were entrusted with the general administration of their charge. Mahmud of Ghazni was perhaps the first independent Muslim ruler who styled himself as Sultan. By the time the Turks conquered India, the term Sultan had become a popular and universally recognized title for the sovereign Muslim rulers. दिल्ली के मुस्लिम रूलर्स ने जो है सुल्तान का टाइटल लिया, वो अर्ली मेडिवल पीरियड में कहीं ना कहीं ये टाइटल एक फैशन में आ गया और दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद जो प्रोविंशियल या रीजनल मुस्लिम डायनेस्टीज भी राइज अप हुई, उन्होंने भी सुल्तान का टाइटल लिया। बाबर पहले मुस्लिम मोनार्क थे भारत के जिन्होंने जो है वो सुल्तान का टाइटल नहीं लेके 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में जीतने के बाद पातशाह की उपाधि ली। सुल्तान जो टर्म है वो पावर या अथॉरिटी बताता है और कभी कभी ये जो है ये प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ खलीफा जो है इस टर्म को यूज किया करते थे। महमूद ऑफ गजनी जो है वो पहले इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे जो खलीफा के प्रोविंशियल गवर्नर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुल्तान की उपाधि ली। और जब टर्क्स ने कॉन्कर कर लिया तो अब ये जो है सुल्तान जो है एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड टाइटल बन गया। हर कोई जो है वो सुल्तान की उपाधि लेते फिरता था। सुल्तान जो दिल्ली के थे वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट रूलर थे। उनका जो टेरिटोरियल पोजेशन था उसमें खलीफा की कहीं ना कहीं भी जो है ना कोई जिक्र नहीं थी। खलीफा का वो टेरिटोरियल पोजीशन नहीं था, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स नहीं थे, उन्होंने खुद से एरिया ऑक्यूपाई किया था। ना ही कोई मिल्लत के लोग जो है उनको इलेक्ट करते थे। नॉमिनल एलिजेंस वो जो है खलीफा को एज अ मैटर ऑफ कर्टसी पे कर दिया करते थे। थियोरेटिकली सोवरेनिटी जो है वो मिल्लत में था, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, सारे के सारे मुस्लिम भाई लोग जो है वो खुद से इलेक्ट कर सकते थे कि कौन उनका सुल्तान बनेगा या कौन खलीफा बनेगा। और सुल्तान जो है वो सपोजिटली क्या होता था, वो इलेक्ट होता था मिल्लत से। लेकिन ये बस थियोरेटिकली ही था, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं था। मिल्लत जो है वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती थी किसी पॉलिसी या एक्शन को सुल्तान के, बट ये ना ही इलेक्ट कर सकती थी सुल्तान को मॉडर्न डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हिसाब से, ना ही किसी इनकॉम्पिटेंट या अनवर्दी सुल्तान को हटा सकती थी। किंगडम जो दिल्ली का था उसको जो है कार्व आउट किया गया था केपेबल और एम्बिशियस मिलिट्री जनरल्स के द्वारा फोर्स के साथ, है ना, मिल्लत के डिसीजंस के थ्रू नहीं। और जब दिल्ली में या भारत में ये रूल करने लगे तो भारत की मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट थी, प्रजा थी, रैयत जो थी वो नॉन मुस्लिम थी और मिल्लत तो बस एक बहुत छोटा सा पार्ट था। तो ये भी बहुत मिल्लत या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्लत, कॉन्सेप्ट ऑफ सुल्तान, ये सब जो है वो थ्योरेटिकल था, या खलीफा को एलिजियंस पे करना, ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट थ्योरेटिकल थिंग। Strength or weakness of the Sultanate depended upon the personality and character of the Sultan. His government was based on highly centralized despotic principles. Some of the sultans formally introduced Islamic law within their dominance, albeit there was no rule of law in the Sultanate. Word of the Sultan was treated as law. Alauddin Khalji, backed by strong army, could afford to defy Islamic principle of government and administration, make the ulema subservient to him and declare that he was the state. तो स्ट्रेंथ या वीकनेस जो है ना वो सुल्तान के कैरेक्टर पर डिपेंड करता था और हाईली सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप रखा करते थे सुल्तान। कुछ सुल्तान जो है वो नाम के लिए कहते थे कि हमारा जो राज्य है वो इस्लामिक लॉ पर चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई लॉ नहीं था। जो भी सुल्तान कह देता था वही लॉ था। अलाउद्दीन खलजी जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उन्होंने तो बड़े आराम से उलेमा को अपने से नीचे का दर्जा दे दिया था और वो कहते थे कि मैं ही राजी हूँ, मेरा ही वर्ड लॉ है, मुझे नहीं पता कि मैं जो करता हूँ वो इस्लाम के हिसाब से सही है या गलत। Founding fathers of the Sultanate did not belong to any ruling house or families of high social status. They started their career as slaves, not even as ordinary free citizens. Therefore, they did not claim any noble pedigree or hereditary right to hold the crown.
Even if they did, none took them seriously. There was no fixed law of succession to the throne among them. Assumption of the crown depended on the dictum, survival of the fittest and might is the right. No wonder Sultan occupied the most privileged position in the administrative setup of the Sultanate. He was a military despot. All the powers of the state, whether executive, legislative, judiciary or military, were concentrated in his hands. He was the pivot around which the entire administrative structure of the Sultanate revolved. The Sultan was chief executive, sole legislator, fountainhead of justice, and supreme commander of armed forces. He made appointment to all top civil and military offices, and the entire bureaucracy functioned under him in his personal direction and control. The Muslim jurist assigned 10 functions or duties to the Sultan in his capacity as the chief executive of the Islamic State. These comprise protection of faith, defense of Muslim territory, protection of frontiers of the state against foreign aggression, war against the enemies of Islam, enforcement of criminal code, maintenance of law and order, administration of justice, collection of revenues, disbursement of grants and wages to those who deserved an allowance from the public exchequer, appointment of trustworthy and capable counsellor and administrator, and control of the public affair through personal inspection and supervision of administrative machinery. The Sultan forfeited his claim to the throne if he failed to perform his duty deliberately or disregarded them willfully. His duties towards the non-Muslim subject were also well defined by Islamic law. The infidels were not treated as full-fledged citizens of Islamic State. Nevertheless, once they acknowledged the sovereignty of the state and agreed to pay jizya, they acquired the status of zimmis. The Sultan was under obligation to protect their life and property and accord them freedom of worship and social life. जिन लोगों ने सल्तनत की शुरुआत की वो किसी भी रूलिंग हाउस को या हाई सोशल स्टेटस को बिलोंग नहीं करते थे। वो एक स्वतंत्र इंसान भी नहीं थे, वो गुलाम हुआ करते थे। इसलिए कभी भी उन्होंने हेरिडिटरी राइट क्राउन को बिल्कुल लिया ही नहीं, और कभी अगर उन्होंने कहा कि मैं हेरिडिटरी क्राउन मुझे बिलोंग करता है तो किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। कोई फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि इसके बाद यही आएगा, है ना। जैसे कि इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले कह भी दिया था कि रजिया उनको सक्सीड करेगी, लेकिन फिर भी नोबेलिटी ने नहीं माना। एजम्पशन जो है क्राउन का एक ही चीज पर डिपेंड करता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सुल्तान बन जाता था, और इसलिए सुल्तान क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर होता था तो वो एक प्रिविलेज पोजीशन होता था, वो एक मिलिट्री डिस्पॉट होता था। सारा का सारा पावर जो है स्टेट का वो सुल्तान के अंदर होते थे, सुल्तान के हाथों में होते थे, और वो एक पाइवट थे, वो फिक्स्ड पॉइंट थे जिसके इन एंड अराउंड जो है सल्तनत रिवॉल्व करता था। सुल्तान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सोल लेजिस्लेटर थे, उनका वर्ड लॉ था और वही जस्टिस देते थे। आर्म फोर्स को भी वही कमांड किया करते थे। सारे टॉप अपॉइंटमेंट सिविल और मिलिट्री ऑफिसेस में सुल्तान ही करते थे। ब्यूरोक्रेसी में अपने पसंद के लोगों को बिठाते थे। मुस्लिम जूरिस्ट जो है उन्होंने 10 फंक्शन दिए हुए थे या 10 ड्यूटीज दिए हुए थे जो सुल्तान को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक स्टेट के तौर पर करना था। ये ड्यूटीज क्या थी? सबसे पहले फेथ का प्रोटेक्शन, दूसरा मुस्लिम टेरिटरीज का प्रोटेक्शन, तीसरा फ्रंटियर्स स्टेट का जो अब बाहरी हिस्सा है, बाहरी छोर है जहां पर अटैक हो सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन फॉरेन अग्रेशन से, एनिमीज ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट वॉर करना, क्रिमिनल कोड और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और क्रिमिनल कोड को इन्फोर्स करना, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, रेवेन्यूज कलेक्ट करना, ग्रांट्स और वेजेस डिसबर्स करना उनको जो डिजर्व करते हैं, अलाउंस फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर, ट्रस्टवर्दी और केपेबल काउंसलर्स को अपॉइंट करना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करना, पब्लिक अफेयर्स को कंट्रोल करना पर्सनल इंस्पेक्शन करके, सुपरवाइज करना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। सुल्तान जो है अपने क्लेम टू द थ्रोन तभी कर पाते थे जब वो अपने इन ड्यूटीज़ को अच्छे से कर पाते थे। अगर वो इन ड्यूटीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे, मतलब वो वीक सुल्तान है, तो उन पे उनकी नोबिलिटी जो है वो चेक कर लेती थी। उनके जो ड्यूटीज़ हैं नॉन मुस्लिम्स के तरफ वो भी इस्लामिक लॉ में बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है।
इनफेडल्स यानी कि काफिर जो नॉन मुस्लिम है, उनको जो है एक प्रॉपर सिटीजन, फुल फ्लेजेड सिटीजन नहीं माना जाता था। नेवरदलेस एक बार अगर वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते थे इस्लामिक सुल्तान की और अग्री कर जाते थे कि वो जजिया यानी कि पोल टैक्स देंगे, तो उनको जिम्मी का स्टेटस दे दिया जाता था। और उसके बाद सुल्तान की ये ऑब्लिगेशन थी कि सुल्तान को उनकी भी ज़िंदगी बचानी है, उनकी प्रॉपर्टी बचानी है और उनको फ्रीडम देना है कि वो वर्शिप कर सकें जो भी मन करे उनका, जिनको भी, और सोशल लाइफ जैसे जीना चाहें जी सकते हैं। अब मिनिस्टर्स। सुल्तान वॉज असिस्टेड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन बाय अ नंबर ऑफ डिग्निटरीज। दिल्ली एज अ मेट्रोपोलिस of Islamic culture in the subcontinent attracted rich talent from all over the Muslim world. Sultans were great patrons of foreign immigrants who readily absorbed into the imperial service according to their qualification, competence and taste. Reputed general, experienced administrator, scholar and theologians flocked to the court and offered services to the Sultan and the state. The Sultan therefore enjoyed wonderful opportunities as his councillors, ministers, heads of department and military generals were wisest. The business of the state was transacted in a magnificent darbar of the royal court, which was itself constituted by an important political institutions of the time. The sultans organized their courts on the Persian model and spent lavishly on their maintenance. A review of Balban's court, as given elsewhere in his study, throws a flood of light on this institution. तो मिनिस्टर्स जो होते थे सुल्तान के, वो उनके अलग अलग ड्यूटीज़ को असिस्ट करते थे। दिल्ली एक मेट्रोपोलिस था इस्लामिक कल्चर का, इसलिए पूरे दुनिया भर के मुस्लिम वर्ल्ड से जो है फॉरेन इमिग्रेंट्स जो है वो दिल्ली आया करते थे, और सुल्तान भी जो है उनको पैटर्नशिप दिया करते थे उनके क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस और टेस्ट के बेसिस पर। रेप्यूटेड जनरल्स जो हैं, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस, ये सब सुल्तान की कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे। सुल्तान जो है वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ इन्जॉय करते थे कि एक ग्रुप ऑफ लोगों में वो वाइजेस्ट को चुन सके, एक्सपीरियंस्ड मैन को चुन सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट सर्विसेज के लिए अवेलेबल होते थे। जो भी बिजनेस होता था कोर्ट का, उसको एक दरबार हेल्ड किया जाता था, राज दरबार, और उसी में बिजनेस किया जाता था। और सुल्तान जो है वो दरबार को पर्शियन मॉडल पर मेंटेन करते थे और बहुत ज़्यादा खर्च करते थे दरबार को खूबसूरत बनाने में। बलबन के कोर्ट का डिस्क्रिप्शन इसी बात को जो है हमें इसी बात की एक्चुअली क्या करता है, एक बताता है, एक टेस्टिमनी बियर करता है कि दरबार पर लैविशली स्पेंड किया जाता था। To begin with, the Sultan of the slave dynasty constituted 4 ministers at the top level. These were held by the Wazir, the Aris-e-Mamlik, the Diwan-e-Insha and the Diwan-e-Risalat. After some time, there came to be existence of an extraordinary officer of the state styled as Naib-ul-Mulk or Malik Naib, the regent or the deputy sultan. At occasions, the office of the Wazir and Malik Naib were held by one and the same person, particularly when the Sultan happened to be weak. Under normal circumstances, however, Malik Naib enjoyed less powers than those wielded by the Wazir. When the Sultan was well established, 2 more departmental heads were raised to the status of central minister. They were the Sadr-e-Sudur and Diwan-e-Qaza. The commander of the royal army, next to the Sultan, the crown prince, if so nominated, and above mentioned 6 or 7 dignitaries constituted the nucleus of the Council of Advisors or Majlis-e-Aam or Majlis-e-Khalwat, which comprised the most trusted and highest officers of the state. Sultan generally discussed all important matters of the realm in this council. It had no constitutional validity, of course. It was only an advisory council, a consultative body
whose decisions were not binding on the Sultan. Nevertheless, a wise Sultan preferred to carry his counselors with him in formulation and implementation of important state policies. तो क्या कहा जा रहा है कि स्लेव डायनेस्टी से अगर शुरू किया जाए तो स्लेव डायनेस्टी में 4 मेन मिनिस्टर हुआ करते थे, वजीर, अरीज़े ममलिक, दीवाने इंशा और दीवाने रिसालत। कुछ समय के बाद जो है एक और नए मिनिस्टर आते हैं जिनको मलिक नायब कहा जाता है। ये डेप्यूटी सुल्तान हुआ करते थे। कभी कभी जब सुल्तान वीक हुआ करते थे तो मलिक नायब और वजीर एक ही इंसान होता था, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मलिक नायब जो है वो वजीर से कम पावर इंजॉय करते थे। जब सल्तनत जो है वो वेल स्टैब्लिश हो गया था तो उस समय जो है 2 और मिनिस्टर्स या फिर डिग्नेटरीज आए जो सुल्तान के कोर्ट में हुआ करते थे, जैसे सदर सुदर और दीवाने काज़ा। कमांडर जो है रॉयल आर्मी के, सुल्तान के बाद क्राउन प्रिंस, ये लोग भी जो है ये भी कोर्ट में रहा करते थे और ये सब मिल करके एक काउंसिल बनाते थे जिनको मजलिस आम या फिर मजलिस खलवत कहा जाता था और ये सुल्तान के सबसे ट्रस्टेड लोग हुआ करते थे। जनरली इनका जो डिसीजन होता था, जो भी अग्रीमेंट होता था, वो एक्चुअली सुल्तान पर जो है ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक वाइस सुल्तान वही होता था जो इनको साथ लेकर चलता था। Wazir, also styled as Wakil or Wakil us Sultanat, was the prime minister and his department was called Diwane Wizarat. A Wazir was head of the finance department and usually held overall charge of the entire administrative setup. He stood midway between the Sultan and his subject. He did not, however, possess disciplinary control over the other central ministers. As head of finance department, Wazir laid fiscal policy of the state in consultation with the Sultan, tapped the various sources of income, made arrangements for collection and safe custody of revenues, and exercised complete control over the expenditure on civil as well as military establishment. He was assisted in the discharge of his financial duties by 2 junior ministers, Mushrif and Mustafi. The Mushrif could be defined as the accountant general, while the Mustafi functioned somewhat like the auditor general. The Nayab Wazir acted as the deputy to the prime minister. Wazir recruited higher civil services with the approval of the Sultan and exercised control over the bureaucracy. Wazir was of course the most trustworthy associate of the Sultan, who acted in harmony with the sovereign. A powerful minister always stood the chance to dominate weak master and behave de facto ruler by making the Sultan as puppet in his hand. तो वजीर या वकील जो है ये क्या हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और इनके डिपार्टमेंट को दीवाने वजीरत कहा जाता था। वजीर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का ओवरऑल चार्ज लेते थे। वो सुल्तान और जनता के बीच में एक मिडवे थे, लेकिन ये बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते वजीर जो है वो फिस्कल पॉलिसी सुल्तान के कंसल्टेशन में स्टेट के लिए तय करते थे। वो पता करते थे वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम और डिसाइड करते थे कि कैसे कलेक्शन और सेफ कस्टडी होगा रेवेन्यूज का। वजीर को जो है उनके फंक्शनल डिस्चार्ज में जो है मुशरीफ और मुस्तफी मदद करते थे। मुशरीफ जो है वो अकाउंटेंट जनरल थे, वो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, और मुस्तफी वॉज ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करते थे अकाउंट को। नायब वजीर जो है वो वजीर के डेप्यूटी हुआ करते थे। वजीर जो है वो हायर ऑफिसर्स मतलब ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल इंजॉय करते थे, उनको अपॉइंट भी करते थे, ऑफ कोर्स सुल्तान के कंसिडरेशन के बाद ही। और वजीर जो है वो सुल्तान के सबसे ट्रस्टवर्दी एसोसिएट हुआ करते थे और सुल्तान के साथ हार्मनी में एक्ट करते थे। अगर सुल्तान पावरफुल नहीं होते थे तो वजीर उनको अपने हाथ का पपेट बना लेते थे, जैसा हमने पीछे चैप्टर्स में देखा भी है। द नेक्स्ट इज अरीज ए ममलिक। अरीज ए ममलिक जो है वो आर्मी के हेड हुआ करते थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉल्ड दीवाने अर्ज। तो ये जो है दीवाने अर्ज को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। अरीज ए ममलिक के अंदर दीवाने अर्ज था और ये रिस्पॉन्सिबल थे ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रॉयल आर्मी के, और डिसिप्लिनरी कंट्रोल एंजॉय करते थे आर्मी के ऊपर। ये एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ नहीं है आर्मी के, कमांडर इन चीफ सुल्तान ही है, और कमांडर इन चीफ एक्चुअली अलग से भी है, बट अरीज ए ममलिक जो है वो क्या है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज और मेंटेन कर रहे हैं।
इनकी ड्यूटीज़ जो है वो क्या थी कि ये रिक्रूट करते थे डिफेंस पर्सनल को, उनके सैलरीज को फिक्स करते थे, उनके रोल्स को तैयार करते थे, कोई भी आर्मी को कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए या कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या कहाँ स्ट्रैटेजिक प्लेस में कितनी आर्मी होगी, ये सब ये डिसाइड कर सकते थे। रिव्यू ऑफ आर्मी एंड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस भी यही करते थे। हमने पढ़ा था ना दाग वाला, तो उसकी बात की जा रही है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड गैरिसन द फोर्ट। फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना और आर्मी प्रोवाइड करना, ये भी इनकी ड्यूटी का एक पार्ट था। वॉर के समय में अरीज ममलिक जो है वो प्रिपेयर करते थे और एलोकेट करते थे कंटिजेंट्स को एक्शन के लिए। कभी कभी जो है इनको जो है अकम्पनी करते थे, कभी कभी नहीं, अक्सर ही ये जो है ये आर्मी को वॉर फ्रंट में अकम्पनी किया करते थे और कमांडर इन चीफ के साथ सबऑर्डिनेशन में एक्ट करते थे। कमांडर इन चीफ दूसरे हैं जो आर्मी को कमांड करेंगे, ये सुल्तान भी हो सकते हैं या सुल्तान जिसको चूज करे वो भी हो सकता है। तो अलग अलग मिशन में अलग अलग कमांडर इन चीफ भी हुआ करते थे बहुत बार। तो जो अरीज ममलिक हैं ये वॉर फ्रंट में कमांडर इन चीफ को सबऑर्डिनेट करते थे। ये जो है ही मेड द कमिसरियल अरेंजमेंट एंड मेट द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ द सोल्जर। सोल्जर के नीड्स को जो है ये पूरा करते थे। मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अरीज ममलिक सुपरवाइज द बूटी। तो जो बूटी, जो खुम्स ये लोग कलेक्ट करके लाते थे, उसको शेयर करते थे स्टेट और सोल्जर के बीच में अच्छे से। जनरली जो इस्लामिक लॉ कहता है कि सोल्जर्स का 80% मतलब 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस वो सोल्जर का हो जाता था और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस स्टेट का होता था। डिफेंस पर्सनल जो है लुक टू हिम फॉर, डिफेंस पर्सनल जो है वो इन पर डिपेंडेंट थे अपने प्रमोशन के लिए, अपने इमोल्यूमेंट्स के बढ़ावे के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए। स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन जो है आर्मी का वो अरीज ममलिक के कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करता था, उनके कैरेक्टर पर डिपेंड करता था। इनको जो है इनके ड्यूटी के डिस्चार्ज में जो है नायब्स और डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी हेल्प किया करते थे। नेक्स्ट इन द लाइन इज दीवाने इंशा। दीवाने इंशा मतलब रॉयल कोर्ट के रिकॉर्ड्स को, करेस्पॉन्डेंस को जो मेंटेन करे वो डिपार्टमेंट। इसको जो है एक सेंट्रल मिनिस्टर कंट्रोल करते थे। उनको बहुत सारे नामों से बोला जाता है, कभी दाबिर ए ममलिक, कभी दाबिर ए खास या फिर कभी अमीर मुंशी। तो ये 3 अलग अलग नाम हैं जो दीवाने इंशा के हेड थे उनका। ये डिपार्टमेंट जो है ये मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था रॉयल कोर्ट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, फ्यूडिटरी चीफ्टन्स के बीच में, मिलिट्री जनरल्स या फॉरेन पावर्स के बीच में। ये जो है ये फरमान्स ड्राफ्ट करता था सुल्तान का या फिर ग्रैंडीज ऑफ द एम्पायर का फॉरेन रूलर्स को देता था। इन टर्न जो फॉरेन रूलर्स भी जो लेटर वगैरह देते थे वो इसी के थ्रू सुल्तान तक पहुंचता था। इसके ड्यूटीज के नेचर के हिसाब से दाबिर ए ममलिक वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हाईली एजुकेटेड मैन, एक्सपर्ट इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड डिप्लोमेसी. He acted as private secretary of the Sultan and maintained perfect secrecy about all that transpired in his department. He utilized the services of scholars in various languages who drafted the letters and employed an army of calligraphists and dabirs who prepared the copies of the correspondence. It was because in the absence of modern printing facility, farmans once prepared and approved by the Sultan had to be copied out for dispatch to number of dignitaries at a time. तो क्या होता था कि ये जो है ये सीक्रेसी मेंटेन करते थे, सुल्तान के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते थे और उनके सारे लेटर्स किसी को भेजने हो, कहीं से लेटर आए सुल्तान के लिए तो वो इनके थ्रू, तो इनको इनका जो जॉब था इस हिसाब से इनको बहुत ही एडुकेटेड होना पड़ता था, लैंग्वेज की नॉलेज होनी पड़ती थी। ये बहुत सारे क्लर्क्स को अपॉइंट करते थे और कैलीग्राफिस्ट को, क्योंकि एक बार सुल्तान ने किसी ऑर्डर पर, किसी फरमान पर साइन कर दिया तो उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ लिखनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस जैसा कुछ नहीं था, तो लिखनी पड़ती थी ताकि वो अलग अलग डिग्नेटरीज को जा सके एक ही बार में। दाबिर ए ममलिक जो है उनमें डिप्लोमेटिक स्किल था कम्युनिकेशन का और वो सुल्तान के सेंटिमेंट्स को समझते थे। साथ साथ वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर कीपिंग द एम्पायर इंटैक्ट बाय डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स, और वो एम्पायर को एक रखने में भी रिस्पॉन्सिबल होते थे बहुत समय अपने डिप्लोमेटिक स्किल के थ्रू। दीवाने रिसालत ये चौथा पिलर था इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन का।
There is some difference of opinion among modern scholars regarding the exact function performed by the ministry. Maybe different types of functions were entrusted to it during the reign of various ruling dynasties. Under the period of slave dynasty, the head of the department was Sadr, who was primarily a minister for ecclesiastical affairs. He managed the religious endowments and disbursed grants and stipends to the ulema, sheikh and other holy men. तो दीवाने रिसालत के बारे में ना थोड़ा हिस्टोरियंस के बीच में जो है मतभेद है कि ये क्या करते थे। ऐसा माना जाता है, पॉपुलर बिलीफ है कि ये अलग अलग सल्तनत के समय में दीवाने रिसालत जो है वो अलग अलग काम किया करते थे। तो गुलाम वंश के समय में जो है ये रिलीजियस अफेयर्स देखा करते थे और ग्रांट्स स्टाइपेंड्स देते थे उलेमा को, शेख को और दूसरे होली मैन को। इन हिज कैपेसिटी एज रसूल ऑफ द सुल्तान, तो सदर जो है वो सुल्तान के रसूल हुआ करते थे और इस कैपेसिटी में ही ऑल्सो रिसीव्ड अपील्स एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड रिड्रेस देयर ग्रीवांसेस। तो लोगों की जो अपील्स है या कंप्लेंट्स है वो भी लिया करते थे और उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने की कोशिश करते थे। इट सो अपीयर्स दैट एट ओकेजन्स ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू रिसीव एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज फ्रॉम फॉरेन रूलर्स एंड इंट्रोड्यूस देम टू सुल्तान। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दिस डिपार्टमेंट वॉज टेकन आउट ऑफ द हैंड ऑफ सदर एंड ईदर रीनेम्ड और रिप्लेस्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने रियासत। तो क्या होता था, कभी कभी ये जो है फॉरेन लोगों से भी डील करते थे सुल्तान के बिहाफ पर। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है ये डिपार्टमेंट को जो है सदर के हाथ से लेकर के जो है रीनेम कर दिया गया था या फिर रिप्लेस कर दिया गया था दीवाने रियासत से। और दीवाने रियासत का प्राइमरी फंक्शन क्या था, इकोनॉमिक रेगुलेशंस को जो है इम्प्लीमेंट करना, सुल्तान के मार्केट कंट्रोल्स करना, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करना और डिटेल्स बताना सुल्तान को इन सारे मैटर से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है खिलजी इंपीरियलिज्म में पढ़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है दीवाने रियासत जो है उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और सदर के ऑफिस जो है वो वापस से प्रोमिनेंस में आ गई। दीवाने काज़ा वॉज द हेड ऑफ काजी उल कज़ात और काजी उल ममलिक, ही वॉज द चीफ काजी। फिर दीवाने काज़ा कौन थे, वो जो है दीवाने काज़ा एक डिपार्टमेंट था जिसको कौन हेल्प करते थे, काजी उल कज़ात। काजी उल कज़ात कौन है, चीफ काजी हैं, वो दीवाने काज़ा डिपार्टमेंट को हेड करते थे। और वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था स्टेट का। यूजुअली ऑफिस ऑफ सदर एंड चीफ काजी वॉज कंबाइंड इन अ सिंगल पर्सन। अक्सर जो है सदर और काजी उल कज़ात का ऑफिस जो है वो एक ही इंसान मैनेज करता था, एक ही इंसान हेड होता था। अदर इम्पीरियल ऑफिसर्स, इसके बाद हम बाकी इंपीरियल ऑफिसर्स कर लेते हैं एंड दिस विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड देन वी विल डू प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उनका कैसा सेटअप था इन अनदर वीडियो। अदर इंपीरियल ऑफिसर्स, देयर वेर अ नंबर ऑफ रॉयल डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज विच डिड नॉट फॉल विदिन द कंट्रोल ऑफ अबव मेंशन्ड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। दीज ऑफिसर्स वेर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सुल्तान एंड सम ऑफ देम wielded great influence among the sovereign and court। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स या रॉयल डिपार्टमेंट्स थे, कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो किसी भी रॉयल डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते थे और ये क्या करते थे, ये सुल्तान को डायरेक्टली रिपोर्ट किया करते थे और सुल्तान के साथ सुल्तान के ऊपर इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था, कोर्ट पर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था। बरीद ए मामलिक, ये जो है ये हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुआ करते थे। वकील दार जो है इंचार्ज थे रॉयल हाउस होल्ड के और इनको जो है उसके बाद अमीर ए बरबक जो है ये सुप्रिटेंडेंट थे रॉयल कोर्ट के और ये असाइंड प्लेसेस टू नोबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद देयर रैंक एंड स्टेटस एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट में जो है नोबिलिटी को उनके स्टेटस के हिसाब से जगह दिया करते थे और कोर्ट के डिग्निटी को, कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन करते थे। अमीर हाजिब जो है kept an eye on the visitors of the court and presented them to the sultan in accordance with the court etiquette। तो अमीर हाजिब जो है वो नज़र रखते थे कि कोर्ट में कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है और सुल्तान को जो है इसका पूरा ब्यौरा देते थे। अमीर मजलिस अरेंज द मीटिंग्स ऑफ द रॉयल असेंबली, स्पेशल सेलिब्रेशंस एंड फीस्ट। द पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द सुल्तान वेर कॉल्ड जानदार्स, हुज ऑफिसर्स इन चार्ज वॉज नोन एज सर ए जानदार। तो अमीर मजलिस जो है वो रॉयल मीटिंग्स को अरेंज करते थे, फीस्ट को, सेलिब्रेशंस को अरेंज करते थे।
पर्सनल बॉडीगार्ड जो सुल्तान के थे उनको जानदार कहा जाता था और उनको हेड करते थे सरे जानदार। अमीर शिकार जो है वो रॉयल हंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। कोतवाल और काजी जो है वो मेट्रोपोलिस के जो होते थे वो क्या करते थे, इम्पॉर्टेंट इंपीरियल ऑफिसर्स हुआ करते थे। चीफ क्वीन जो है उनको मलिकाए जहान कहा जाता था, वो क्वीन मदर भी कहा जा सकता है उनको। वो ऑफन जो है ऑफन कॉल्ड द मखदूना ए जहान और खुदावंदा ए जहान। खुदावंदा ए जहान या मखदूना ए जहान या मलिकाए जहान एक ही है, क्वीन मदर। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है दे वेर द फेवरेट वाइफ्स ऑफ द सुल्तान एंड क्राउन प्रिंस जो हैं वो शायद इनके ही मोस्ट प्रोबेबली इनके वार्ड हुआ करते थे। wielded ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन रॉयल हाउस होल्ड, और रॉयल हाउस होल्ड में इनकी बहुत चलती थी मलिकाए जहान या खुदावंदा ए जहान की। Importance of these dignitaries fluctuated from time to time and depended upon a particular situation or the personal whims and taste and requirement of various sultans. All the ministries, including the wazir and other high officers, were mere creatures of the sultan. They held office at the pleasure. तो लेकिन फिर भी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जो भी हाई ऑफिसर्स थे, वो एक्चुअली में सुल्तान के ही लोग हुआ करते थे और जब तक सुल्तान चाहते थे तभी तक जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकते थे। आफ्टर दिस देयर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि हम लोग अनदर वीडियो में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।